Former US President John F. Kennedy once said, "The human mind is our fundamental resource, and intellectual property is the mechanism that ensures its fruits are shared and valued." Intellectual property plays a crucial role in shaping innovation, ensuring that ideas are protected while also driving technological and economic progress. With this thought, we are gathered here today to explore the evolving landscape of intellectual property, a pillar of creativity and advancement. A very good morning to one and all present here. Our esteemed guest for today, Dr. Mahendra Dongre, Deans, HODs of all departments, faculty members, and dear students. I warmly welcome you all to today's seminar on the basics of intellectual property rights and its importance for innovators and entrepreneurs. We are delighted to have you join us for this insightful and informative session. It is my distinct honor and privilege to introduce our esteemed speaker for today, Mr. Mahendra Dongre. Currently serving as the Assistant Controller of Patents and Design at the Indian Patent Office, Mumbai, Mr. Dongre plays a vital role in examining patent applications in the field of mechanical engineering. He is also a key member of the Intellectual Property Centralized Quality Team, ensuring adherence to international standards. With over a decade of experience in intellectual property and engineering, he has conducted examinations under the International Search Authority and International Preliminary Examining Authority. His passion for spreading awareness about intellectual property has led him to actively contribute to the National Intellectual Property Awareness Mission, where he has delivered impactful lectures at universities and colleges across the country. With his extensive expertise and contributions to intellectual property rights, Mr. Dongre is an esteemed figure in India's innovation ecosystem. I now request Mr. Mahendra Dongre to kindly come upon the dais and our respected Dean, Dr. Sheetal Bukawar ma'am, to present him with a token of our appreciation. चावी किसको दो हाय होता ना त्याला चावी हे येतोय बघ इथं Thank you, ma'am. I request you to kindly take your seats. And now, without further ado, sir, I request you to please share your invaluable insights with us. Please join me in welcoming Mr. Mahendra Dongre with a warm round of applause. Thank you so much. Respected dignitaries present here, faculty members and dear students, a very good afternoon. I am Mahendra Dongre, Assistant Controller of Patents and Design from Indian Patent Office under Ministry of Commerce and Industry. So as we all know that our country has recently celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav. To commemorate this occasion, our department has also started National Intellectual Property Awareness Mission. The target of this mission was to reach out to various students and faculty members throughout India and impart awareness related to intellectual property rights. We achieved a great success in this. Actually, we have covered more than 1 million students and faculty members throughout India, and even the patent filing or we can say the IPR filing has been increased tremendously. And on the other hand, the Global Innovation Index has also improved. Our country has now ranked 39 overall. So with this momentum, let's start the program. And I hope that after this program, we will have some basic knowledge about intellectual property rights and what are the different various types of intellectual property rights. So let's start. So first of all, what is the meaning of the word intellectual property? Anyone? What is the meaning of the word intellectual property? Yeah, please feel free to say. Intellectual property, anyone? Okay. What is the meaning of the word property? Okay, no problem. So intellectual property is nothing but the creation of mind, which is having certain value, right? आपके दिमाग की जो भी उपज है, अगर आप उसको protect करते हैं, that comes under intellectual property.
है ना? कुछ creation of mind can be anything. It can be a technological advancement. It can be a copyright, or literary work, artistic work, dramatic work. It can be a trademark, right? It can be anything. It can be a geographical indication. So there are various types of intellectual property rights. People often get confusing this intellectual property right. They mix trademark with patent. Copyright को patent बोलते हैं, design को patent बोलते हैं, right? तो आज हम लोग इसका बेसिक डिफरेंस समझेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पेटेंट्स? पेटेंट्स एनीवन? किसी ने वर्ड सुना है पहले क्या था हमसे पेटेंट्स? एनीवन? यस यस. डिजाइन. डिजाइन इज अ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. आई एम यस. लीगल राइट. ओके ओके. लीगल राइट अबाउट व्हाट? So, patent is nothing but a legal right. That is very good. Legal right granted for an invention. Here the word invention is very important. Invention means technical advancement over the existing knowledge, or you have created something new. Here the word invention is very important because it includes product and process. So whenever there is some certain technical advancement over the existing knowledge, then it will come under patent only. Right? जब भी कभी technical advancement होगा तभी वो पेटेंट के अंदर आएगा. जब भी कभी इन्वेंशन होगा तभी वो पेटेंट के अंदर आएगा. फॉर एग्जांपल जब पेन नहीं था, हाउ वी यूज्ड टू राइट देम, मतलब हम कैसे लिखते थे पहले? विद द हेल्प ऑफ अ इंक पॉट एंड अ फेदर, राइट? सो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैट इंक पॉट एंड फेदर नाउ? यस, बिकॉज़ इट हैज सर्टेन लिमिटेशन, इट हैज सर्टेन ड्रॉबैक्स. तो जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनोवेशन में होगा, एंड वी इनोवेटेड एंड वी डेवलप्ड द फाउंटेन पेन, राइट? बट आप लोग में से कितने लोग ऐसे जो भी फाउंटेन पेन यूज करते हैं? क्योंकि फाउंटेन पेन में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी. क्या प्रॉब्लम्स थी? कि हम हर सरफेस पे, हर एंगल पे उससे नहीं लिख पाते थे. तो हमने फिर इनोवेट किया, फिर हमने डेवलप किया एक बॉल पॉइंट पेन, राइट? बॉल पॉइंट पेन इज अ ग्रेट इनोवेशन. जो बॉल है उसका वो कंट्रोल कर रहा है फ्लो ऑफ द इंक. उससे आप किसी भी सरफेस पे लिख सकते हैं, किसी भी एंगल पे लिख सकते हैं. नाउ वी हैव डेवलप्ड अ डिजिटल पेन. सो व्हाट इज कंटीन्यूअसली हैपेंड फ्रॉम इंक पॉट एंड अ फेदर टू अ डिजिटल पेन? Continuous innovation means technical advancement over the existing knowledge. फाउंटेन पेन के लिए existing knowledge था इंक पॉट एंड अ फेदर. बॉल पॉइंट की पेन के लिए existing knowledge था फाउंटेन पेन. डिजिटल पेन के लिए existing knowledge है बॉल पॉइंट पेन, राइट? तो whenever there is a technical advancement over an existing knowledge, which includes an invention, which includes a novelty, inventive step, industrial applicability, ये सारी चीजें अगर है तो ही वो पेटेंट की कैटेगरी में आएगा, right? Then comes design. Design here means industrial design, the aesthetic feature or the ornamental feature of a product. किसी भी प्रोडक्ट का बाहरी आवरण. आप जब भी रोड से जा रहे हैं, आप कोई मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार देखते हैं, आप बिना नाम पढ़े पहचानते हैं कि स्विफ्ट कार है. कैसे पहचानते हैं उसका? बिकॉज ऑफ इट्स लुक. वो किस तरीके से उसका एस्थेटिक फीचर है. आप एक रॉयल एनफील्ड की बाइक देख रहे हैं या एक्टिवा देख रहे हैं, आप बिना नाम पढ़े पहचानते हैं. या एक बिस्लरी की बोतल है, आप जानते हैं कि बिस्लरी बोतल है. कैसे पहचान रहे? बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक फीचर. तो जब भी किसी भी एस्थेटिक फीचर को अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, देन इट विल कम अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन. अगर आप अपने घर में कुछ इनोवेट करते हैं, आपने इनोवेट करके एक ऐसा वाटर बॉटल बनाया, आपको लगता है कि वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर रजिस्टर करेंगे, राइट? सो पेटेंट इज डिफरेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन इज डिफरेंट. डिजाइन पेटेंट कुछ नहीं होता है, राइट? डिजाइन पेटेंट लोग बोलते हैं कि हम डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं. पेटेंट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर एंड डिजाइन इज इंडस्ट्रियल डिजाइन. देन कम्स ट्रेडमार्क. Trademark is any word, name, sign, symbol or logo or a slogan. Slogan in the sense, suppose if I say जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो आपके माइंड में क्या आता है? LIC. तो वो एक स्लोगन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. डिटर्जेंट, राइट? घड़ी डिटर्जेंट, वो एक स्लोगन है, वो ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर होता है. तो ट्रेडमार्क मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है, राइट, वो किस तरीके से आपने, मतलब किस ब्रांड नेम के अंदर आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं, या किस वर्ड, स्लोगन, सिंबल के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, जिससे आपका बिजनेस प्रेजेंस पता चले, वो ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर होगा. देन कम्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन. Geographical indication is given to a product which has certain features related to a particular geographical location. For example, नागपुर ऑरेंजेस. नागपुर ऑरेंजेस की जो क्वालिटी होगी, वो नागपुर में उसकी खेती होगी तो ही उसमें वो क्वालिटीज होगी, राइट? दार्जिलिंग की में जो क्वालिटी होगी, वो दार्जिलिंग में अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो ही उसकी क्वालिटी होगी. फॉर एग्जांपल कोल्हापुरी चप्पल. कोल्हापुरी चप्पल को अगर कोई मुंबई में बना रहा है या खारघर में बना के बेच रहा है और बोल रहा है कोल्हापुरी चप्पल है, तो क्या आप उसको सेम क्वालिटी पे खरीद सकते हैं? नहीं,
क्योंकि उसका जो बनाने का तरीका है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो उस जगह पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल तिरुपति मंदिर के जो लड्डू है, उसकी जो विशेषता है वो तिरुपति मंदिर पे है, राइट। तो जब भी किसी प्रोडक्ट का किसी जियोग्राफिकल लोकेशन डिपेंडेंट विशेषता या फीचर, स्पेशल फीचर होगा, देन इट विल कम अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देन कम्स कॉपीराइट। कॉपीराइट इज एनी लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिक, ये सारी चीजों को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो इट कम्स अंडर कॉपीराइट। कॉपीराइट इज वेरी कॉमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बट स्टिल फिर भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने कॉपीराइट का पेटेंट करवा दिया, राइट। सो पेटेंट एंड कॉपीराइट्स आर डिफरेंट थिंग। देन कम सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। सेमीकंडक्टर आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं उसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स का जो लेआउट है, if you want to protect that layout also, then it comes under semiconductor integrated circuit layout design. So is it possible to have various IPs in a single product? अगर मैं बात करूं यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप में पेटेंट क्या क्या हो सकता है? एनीवन? लैपटॉप में पेटेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट आपको कहाँ दिखता है? इनोवेशन कहाँ दिखता है? Yeah, software. Software comes under copyright. If we consider only software, then it comes under copyright in India, but in US it comes under patent. Okay. Any other? Yes, processor. Yes, or motherboard. Okay. The USB port, the hinge support, पहले 180 degree rotate होता था, अभी 360 degree rotate हो रहा है. These all are technical advancement. So whenever there is a technical advancement, it will come under patent. Then the body of the laptop, it is a design feature कि उस पे किस तरीके का पैटर्न बना है, the color combination, the lines, curves, ये सारी चीजें जो है जिससे वो लैपटॉप आइडेंटिफाई हो रहा है, that will come under industrial design. Then trademark is very simple again, जो एप्पल का साइन है उस पे या HP का या डेल का साइन है, that is trademark. Then copyright, the user manual, आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं उसके साथ यूजर मैनुअल आ रहा है, तो वो कॉपीराइट का मटेरियल। एक ही प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेन है, राइट, आप पेन में बता सकते हैं कि इसमें पेटेंट क्या हो सकता है, पेटेंट वाले फीचर क्या हो सकते हैं, इसमें ट्रेडमार्क कहाँ पे है, इसमें कॉपीराइट हो सकता है या नहीं हो सकता है। यस एनीवन? यस, टिप ऑफ द पेन कैन बी अ पेटेंट, रिफिल जो है वो है, उसको जो आप उसका कवर किस तरीके से अटैच कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर पेटेंट। मींस टेक्निकल फीचर पेटेंट में आ गया। ट्रेडमार्क उसमें जो नाम मान लीजिए रेनॉल्ड्स लिखा या मॉनिटर लिखा, जो भी उसके ऊपर लिखा, दैट कम्स अंडर ट्रेडमार्क। देन डिजाइन फीचर ऑफ दैट पेन, मान लीजिए आप पायलट पेन यूज कर रहे हैं तो उसको आप देख के समझेंगे कि पायलट पेन है, राइट, उसका जो एस्थेटिक फीचर है वो डिजाइन के अंदर आता है। तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉसिबल है। So intellectual property right is nothing but the creation of mind. If we apply resources and labor, अगर हम उसको protect करते हैं तो वो intellectual property rights कहलाता है। So why protection is very important in this case? Because अगर हम उसको protect नहीं करेंगे, कोई और उसको copy करेगा, हम उस situation में कुछ भी नहीं कर सकते, right? क्योंकि उसकी novelty खत्म हो जाती है। Novelty is very important. आपको कोई भी चीज market करने से पहले जो आप उसको पब्लिश करने से पहले उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफिस में रजिस्टर कर दीजिए, फिर आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, जैसा मैंने बताया कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर को रजिस्टर किया हुआ है तो यू कैन एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूटिलाइजिंग, कॉमर्शियलाइजिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम योर इनोवेशन, योर क्रिएशन ऑफ माइंड। क्रिएशन ऑफ माइंड आपका है, रिसर्च आपकी है, तो उसका जो भी मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए वो आप ही को मिलना चाहिए, राइट। कोई और उसको कॉपी करके आपके रिसर्च वर्क को पब्लिश कर रहा है या आपके रिसर्च वर्क को प्रोड्यूस करके बेच रहा है तो उसमें आपका काफी लॉस होगा। तो इसीलिए अगर आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो आप किसी और को रोक सकते हैं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये क्रिएशन ऑफ माइंड आपका है। नेक्स्ट, हाउ टू यूटिलाइज एंड कॉमर्शियलाइज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप ओन यूज के लिए भी कर सकते हैं। सपोज इफ यू हैव द रिसोर्सेज एंड मनी, आप अपना कंपनी सेटअप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं और बेच सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, मनी नहीं है, आप ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को किसी और प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लाइसेंस कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर समय के लिए आपकी पेटेंट ले लीजिए, इससे आप मैन्युफैक्चर करके बेचिए और उससे जो भी रॉयल्टी आ रही है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, आप उसको लाइसेंस कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, आप फ्रेंचाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एनी एग्जांपल ऑफ फ्रेंचाइज? एनीवन? फ्रेंचाइजिंग, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, KFC,
राइट, एडिडास, ये सभी फ्रेंचाइजी के एग्जांपल्स हैं। तो आप अपना ब्रांड नेम, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करके, अपना बिजनेस सेटअप करके आप अपना फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं, मर्चेंडाइज स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिज्नी है, मुंबई इंडियंस का आप देखते हैं मर्चेंडाइज है, क्यों टी शर्ट भी बेच रहा है, अलग अलग चीज़ों में भी इन्वॉल्व है, राइट, आरसीबी का। तो ये सारे तरीकों से आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूटिलाइज कर सकते हैं, कमर्शियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये बात करते हैं पेटेंट्स की। So patent is a grant by a sovereign or a state to a person giving exclusive right to stop others from making, using, exercising, vending and importing an invention for a limited period of time. Here the word limited period is very very important because patent is granted only for 20 years. After that it will come under public domain. तो सिर्फ 20 साल के लिए ही आपको उसके राइट्स मिलते हैं, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, उसको कोई भी बिना आपकी परमिशन के यूज कर सकता है, राइट। दिस लिमिटेड पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो भी आपने रिसर्च किया, जो भी आपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया है, वो जनरल पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। इसलिए 20 इयर्स तक आप उसको जिस तरीके से यूज करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप उससे मॉनेटरी बेनिफिट कमाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एलईडी बल्ब है, ये अभी हमें 200 रुपीज में मिल जाता है, लेकिन अगर ये पेटेंटेड अभी रहता, तो अगर ये टेक्नोलॉजी अभी पेटेंट है, तो ये क्या हमें 200 में मिलेगा? वो क्यों? वो तो चाहेगा कि वो उससे और फाइनेंस या मॉनेटरी बेनिफिट कमाए, राइट। तो इसलिए वो पब्लिक डोमेन में सारा जो रिसर्च वर्क है, टेक्नोलॉजिकल वर्क है, वो आना जरूरी है। इसलिए दैट लिमिटेड पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ओनली फॉर 20 years. In exchange for disclosing it in a patent specification such that anyone having average skill in the art can reproduce the invention. आप जब पेटेंट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हैं, यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, राइट, ताकि 20 इयर्स के बाद जब वो पब्लिक डोमेन में आए तो कोई भी आपका स्पेसिफिकेशन पढ़ के उसको यूज कर सके। वो कॉमन पीपल के काम में आना चाहिए, राइट, वो उसको देख के आपका प्रोडक्ट बना सके। यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो आपको पोजीशन आ सकता है कि आपने ये सारी चीज डिस्क्लोज नहीं की है। नेक्स्ट, पेटेंटेबिलिटी सब्जेक्ट मैटर में जैसा मैंने बात किया कि पेटेंट में इन्वेंशन होना बहुत जरूरी है। कैन बी ए प्रोडक्ट और अ प्रोसेस, राइट। इसमें नोवेल्टी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत अच्छा कुछ इनोवेशन बनाया, बहुत अच्छी एक मशीन डेवलप की और आपने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया विदाउट रजिस्टरिंग इट, तो उससे क्या हुआ? उसकी नोवेल्टी चली गई, वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी नोवेल्टी खत्म हो गई। अब आप उसका पेटेंट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसकी नोवेल्टी नहीं है। तो फर्स्ट प्रोटेक्ट करना है आपको, पहले रजिस्टर करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस से, ताकि उसकी नोवेल्टी बनी रहे। देन कम्स इन्वॉल्व द इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप इज नथिंग बट द टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग नॉलेज। उसमें कुछ इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी हो और विच इज नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। मतलब ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी चीज अरेंजमेंट, नियर रीअरेंजमेंट लेके आगे की 2-3 चीज को मिलाकर ये बना दीजिए, तो किसी भी कॉमन पीपल के लिए ऐसा करना इजी है, राइट। तो कुछ ना कुछ उसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। देन कम्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, वो इंडस्ट्री में बनना और इंडस्ट्री के काम में आना चाहिए, राइट, एंड नॉट फॉल अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द पेटेंट एक्ट। सेक्शन 3 और 4 में कुछ एक्सेप्शंस है कि ये सारी कैटेगरीज में अगर आपका पेटेंट लाई करता है तो वो पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, नियर अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सर्टेन थिंग। मैकेनिकल में जैसे हम जो इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं, जुगाड़ करके आप लेके आ गए, 2-3 चीज को मिलाकर एक आपने प्रोडक्ट बना दिया और उसको पेटेंट फाइल कर दिया। दैट इज नथिंग बट द नियर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट, राइट। ये एग्जिस्टिंग लॉ है, जो मान लीजिए न्यूटन का लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके अगेंस्ट आपने कुछ बना दिया। फॉर एग्जांपल, परपेचुअल मोशन मशीन 1 and 2, ऐसा कुछ आप बना दे रहे हैं कि आप आउटपुट ले रहे हैं विदाउट प्रोवाइडिंग द इनपुट। तो ऐसा कोई भी नेचुरल लॉ है को अगर वायलेट करता है आपका इन्वेंशन, वो पेटेंटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बहुत ही इनोवेटिव सिगरेट बनाई, राइट, उसमें फिल्टर आपने बहुत अच्छा यूज किया, उसका जो पेपर क्वालिटी जो है वो अलग से यूज किया है, क्या वो पेटेंटेबल होगा? क्योंकि उसमें इनोवेशन है, इट हैज द नोवेल्टी, इट हैज द इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्री में बन सकता है। क्या पेटेंट होना चाहिए उसका? यस एनीवन? तो सेक्शन 3 में एक प्रोविजन है कि एनीथिंग व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू पब्लिक हेल्थ इज नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया। अगर पब्लिक हेल्थ के कॉन्ट्ररी कोई चीज है तो वो पेटेंट नहीं होगा। तो सेक्शन 3 में बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिससे वो पेटेंट नहीं होता है। देन कम सेक्शन 4 ऑफ पेटेंट्स है, इसमें मान लीजिए कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है या anything which is related to atomic energy, then we have to take permission from the Atomic Energy Authority कि हम इसका पेटेंट एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, सेक्शन 4 में इन्वेंशन फॉलिंग विद इन सेक्शन 21 ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, मतलब इन्वेंशंस व्हिच इज रिलेटेड टू यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, जो भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं,
उसको हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले परमिशन लेनी है, देन वी कैन प्रोसीड। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इन 1856 जॉर्ज डर्फर्ड डी पेनिंग सिविल इंजीनियर, इन्होंने पहला एन एफिशिएंट पंखा पुलिंग मशीन का पेटेंट लिया था। तो पहले राजा महाराजाओं के टाइम में हाथ से पंखा हम लोग यूज करते थे, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, गियर और पुली मैकेनिज्म की हेल्प से उसको थोड़ा मैकेनाइज कर दिया, उसको टेक्निकल एडवांसमेंट उसमें कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट इन्वेंशन अगर हम बात करते हैं एफिशिएंट पंखा पुलिंग मशीन, जिसको इंडिया में पेटेंट मिला है। इन्हें सभी लोग जानते हैं, कौन है? माइकल जैक्सन। ही इज फेमस फॉर डांस, लेकिन इनका एक इन्वेंशन मेथड एंड मींस फॉर क्रिएटिंग एंटी ग्रेविटी इल्यूजन। तो वो डांस में तो अच्छे थे ही, साथ में इन्होंने एक पेटेंट एप्लीकेशन में फाइल किया जो कि ग्रांट हुई है, इन्हें पेटेंट मिला है इस चीज का, और पेटेंट था एंटी ग्रेविटी इल्यूजन क्रिएट करना। और वो दोनों चीज के लिए मिला है, मेथड के लिए भी मिला है, किस तरीके से लीन कर रहे हैं, किस तरीके से सरफेस के ऊपर अपना स्क्रू फिक्स करके उसमें नेल फिक्स हो रहा है, वो मेथड, एंड मींस आल्सो कि किस मींस क्या होंगे इसमें, प्रोडक्ट क्या है उनका, वो जो शू है, राइट। तो वो जूते को उसके ऊपर फिक्स करते और उसके कारण वो एंटी ग्रेविटी एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि एंटी ग्रेविटी वो लीन कर पा रहा है। सो दिस इज द टेक्निकल एडवांसमेंट। तो इन्हें इसका पेटेंट मिला। कुछ सिंपल एग्जांपल्स अगर हम पेटेंट की बात करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बल्की मोबाइल फोन, अगर हम एक रिस्ट बैंड से ही अपने हाथ पे प्रोजेक्ट करते तो इट विल डू द सेम वर्क, है ना, जो फोन का काम है वही वो रिस्ट बैंड भी कर रहा है। तो अगेन एक बल्कि मोबाइल फोन की जगह रिस्ट बैंड अगर यूज कर रहे हैं, देन इट इज अगेन अ टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर द एक्जिस्टिंग। क्या प्रॉक्सी आ रहा है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बल्कि कार स्वैपिंग मशीन, जैसे हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, तो कार स्वैपिंग मशीन यूज, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मशीन अगर हम एक छोटा सा डिवाइस अपने फोन में फिक्स करते हैं, उसी से कार स्वैप करें, देन अगेन उसका साइज भी कम हो गया, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, राइट। और टेक्निकल एडवांसमेंट तो है ही, मतलब दिस इन्वॉल्व्स इन्वेंटिव स्टेप व्हाट द एक्जिस्टिंग। तो पेटेंट तभी फाइल होगा जब उसमें नोवेल्टी होगा, नया होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, राइट, और इंडस्ट्री में बनना और इंडस्ट्री के काम आना चाहिए। ये तीन अगर चीजें हैं तो वो पेटेंट की कैटेगरी में आएगी। पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते टाइम व्हाट आर द फॉर्म्स जो कि मस्ट है, जो हमें फाइल करना है। फर्स्ट वन इज फॉर्म 1, इट इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेंट फीस नीड टू बी पेड, इसके साथ कुछ फी है जो हम डिस्कस करेंगे। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूड टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, आपका इन्वेंशन का क्या टाइटल है, अगेन वो टाइटल 15 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Then comes the details of the applicant, then comes the details of the inventor, इसमें इन्वेंटर कौन है, आपको वो डिटेल्स इसमें सबमिट करनी है। तो बेसिक सा फॉर्म है, इजी है इसको फिल करके। Then comes form 2, details of the invention, it includes title of the invention, background of the invention, background means कि आपने किस चीज के ऊपर अपना इनोवेशन किया है, उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा कि प्रॉब्लम यहाँ थी। जैसे मैंने बात किया कि फाउंटेन पेन हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम बॉल पॉइंट पेन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड हो जाएगा बॉल पॉइंट पेन का फाउंटेन पेन, उसके ऊपर आपने इनोवेट किया है। देन कम्स द पर्टिकुलर ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो होती है इसमें आप जो फोटोग्राफिकल ड्राइंग्स आप सबमिट नहीं कर सकते हैं, आपको इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग सबमिट करनी है। देन कम्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग, कि जो भी ड्राइंग्स हैं उसको आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि किस ड्राइंग में आपने क्या क्या इंक्लूड किया है। देन कम्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन, इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आपका कि आपने किस तरीके से उस पर काम किया है, कैसे वो वर्क करता है, अगर कुछ कंपैरेटिव चार्ट एनालिसिस है, वो सारी चीज आपको उसमें देना है कि किस तरीके से चीज इनोवेट हुई है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लेम्स, जो भी पेटेंट ग्रांट होता है वो क्लेम्स के ऊपर ही ग्रांट होता है। आप जो क्लेम करेंगे उसी पे आपको पेटेंट मिलेगा। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में पेटेंट जो मिलेगा वो क्लेम्स के ऊपर मिलेगा, राइट। तो आप क्या क्लेम करना चाहते हैं आपके इन्वेंशन में, क्या आप पूरा पेन क्लेम कर रहे हैं, या आप टिप या निप ऑफ द पेन क्लेम कर रहे हैं, या रिफिल क्लेम कर रहे हैं, या उसका जो कवर है वो क्लेम कर रहे हैं। तो क्लेम्स पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द एब्स्ट्रैक्ट, जो समरी आपको देनी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then comes Form 3, it is nothing but the details of foreign filing of similar application, कि अगर आपने इंडिया के अलावा if you have filed your application in some other country also, then you have to provide the details in Form 3. Then comes Form 5, that is declaration as to inventor, who is the inventor of this particular application, you need to provide that details also. Form 18 is very very important. अगर आप Form 18 फाइल नहीं करेंगे, आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी और Form 18 आपका फाइल नहीं हुआ है, तो पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगा, सिर्फ वो फाइलिंग स्टेज पे ही रुक जाएगा, राइट। सो Form 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है, उसके बाद आप उसको एग्जामिन कर दीजिए, राइट। आप उसको 48 मंथ्स के अंदर फाइल कर सकते हैं।
और इसके साथ कुछ फी पे करनी होती है। तो फॉर्म 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हम लोग जाते हैं कि हमने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है, फॉर्म 18 फाइल ही नहीं है उसका। तो जब आप एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन लाना ही नहीं चाहते हैं तो वो कैसे प्रोसेस होगा? तो आपको फॉर्म 18 फाइल करना बहुत ज़रूरी है। फी जो है, पहले हमें ऐसा लगता था कि पेटेंट फाइलिंग इज अ कॉस्टली अफेयर, ऐसा नहीं है। फॉर नेचुरल पर्सन, स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फॉर फॉर्म 1 ओनली 1600 इज द फी, और फॉर्म 18 के साथ 4000 रुपीज़ है फॉर 30 पेजेस एंड 10 क्लेम्स। अगर आपके 10 क्लेम और 30 पेज का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, सो इन टोटलिटी यू हैव 5600 जो आपका फी होगा। अगर आप नेचुरल पर्सन जैसे आप लोग हैं, या स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर कोई कंपनी फाइल कर रही है तो यू नीड टू पे 28000 रुपीज़ एज अ फी। तो कॉस्टली नहीं है। 1600 के साथ आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, फॉर्म 18 के साथ 4000 रुपीज़। नेक्स्ट, फाइलिंग प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जो खारघर है मुंबई ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट करना चाहते हैं तो यू कैन सबमिट डायरेक्टली टू द मुंबई पेटेंट ऑफिस जो कि एंटॉपिल बडाला में है। ऑनलाइन फाइलिंग और ज़्यादा इजी है। और जो वेबसाइट है हम लोग की ipindiaonline.gov.in, इस पे कॉम्प्रिहेंसिव फाइलिंग पे जाकर आप बहुत इजी तरीके से फाइल कर सकते हैं, और जो फी मैंने बताया था उसमें 10% कम लगेगा ऑनलाइन फाइल करने में। एक्सपीरियड भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सपीरियड करना चाहते हैं, उसका जो फॉर्म होगा वो फॉर्म 18A साथ में फाइल करना होगा। वो किन किन कैटेगरीज के जो एप्लीकेंट है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटी है, अगर आप में से मान लीजिए 2-3 एप्लीकेंट है, उसमें से कोई एक भी अगर फीमेल है तो भी आप उसको एक्सपीरियड कर सकते हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या इंडिया को इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी डेजिग्नेट कर रखा है, या किसी 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट है, तो भी आप अपना पेटेंट एप्लीकेशन को एक्सपीरियड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि इंडिया और जापानीज पेटेंट ऑफिस में एक एग्रीमेंट है, तो उनका जो भी एप्लीकेशन होता है वो एक्सपीरियड में होता है। नेक्स्ट, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, अगेन इसमें एग्जामिनेशन होता है, 2 तरीके से होता है, फॉर्मल एग्जामिनेशन एंड टेक्निकल एग्जामिनेशन। फॉर्मल एग्जामिनेशन में जो फॉर्म 1 की मैंने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी को ऑथराइज कर रहे हैं, कोई एजेंट हायर कर रहे हैं, फॉर्म 26, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। टेक्निकल एग्जामिनेशन में हम लोग नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं, राइट। और उसके बाद आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि आप जो भी हमारे ऑब्जेक्शंस है कि आपका इन्वेंशन हमें इनोवेटिव लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में हम लोग आपको कन्वे करेंगे, एंड देन आप उसका रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हियरिंग होगा, और उस हियरिंग के बाद ये डिसाइड होता है, कंट्रोलर ये डिसाइड करता है कि जो पेटेंट एप्लीकेशन है ये ग्रांटेबल है या रिफ्यूज होगा। नेक्स्ट, वी हैव द डेटाबेस। आप जो भी आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हम लोग को कैसे पता कि ये जो आपका इनोवेशन है या जो भी आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया इसमें इन्वेंटिव स्टेप है या नहीं? तो हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल होते हैं, उसमें हम कुछ कोडिंग की हेल्प से डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करते हैं और कंपेयर करते हैं आपके पेटेंट एप्लीकेशन से, और उसका इन्वेंटिव स्टेप, नोवेल्टी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं। ऐसा जब भी हमें कुछ लगता है, तो अगर हमें लगता है इन्वेंटिव स्टेप है तो हम कन्वे करेंगे कि योर एप्लीकेशन इज पेटेंटेबल, और वो ग्रांट हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर हम बताते हैं कि हमने क्यों रिफ्यूज किया हुआ। नेक्स्ट, डिज़ाइन की बात करते हैं। Design means only the features of shape, configuration, pattern, ornament or composition of lines or colors apply to any article. Article कोई भी हो सकता है, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, राइट। तो जैसे एग्जांपल लिया था कार का, उसी तरीके से बॉटल हो, या आपके घर में आपने कुछ ऐसा बनाया हो। आप कोई भी प्रोडक्ट अपने घर में देखते हैं तो उसमें ये जरूर देखिए कि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी इन्वॉल्व है, राइट। उसमें डिजाइन फीचर है या नहीं है। जैसे पेटेंट जो है वो 20 इयर्स के लिए मिलता है, उसी तरीके से डिजाइन इनिशियली 10 इयर्स के लिए मिलता है, विच इज एक्सटेंडेबल टू 5 इयर्स और, तो इन टोटलिटी 15 इयर्स के लिए आपको डिजाइन एप्लीकेशन जो डिजाइन राइट्स है वो मिलते हैं। नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ एन आर्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल, तो बाइसाइकिल में एज अ होल जो आप देख रहे हैं उसका भी डिजाइन आप इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी आप इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका सीट हो गया, या पेडल हो गया, या जो उसका हैंडल हो गया, इसका अगर डिजाइन आपने कुछ अलग से इनोवेट करके कुछ बनाया है तो वो भी आप उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन में रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सेट ऑफ आर्टिकल्स, नेक्स्ट, सेट ऑफ आर्टिकल्स को भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, बट द ओनली क्राइटेरिया है इसकी सभी जितने भी सेट उसमें यूज हो रहे हैं सब पे डिजाइन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट,
डिजाइन ऑफ अ ज्वेलरी सेट जैसे हो गया, उसमें देखिए कि सभी में डिजाइन सेम है। सोफा सेट आप यूज कर रहे हैं उसमें डिजाइन सेम होना चाहिए, राइट। क्रॉकरीज आप यूज कर रहे हैं उसमें डिजाइन सेम होना चाहिए, तो आप एक सेट के तौर पे भी उसको फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग ऑफ डिजाइन एप्लीकेशन जैसा पेटेंट फाइलिंग था वो उसी तरीके से इट्स क्वाइट सिंपल। आप अगर मुंबई में पेटेंट ये इंडस्ट्रियल डिजाइन एप्लीकेशन अपनी फाइल कर रहे हैं तो हम उसको डिजिटाइज करके कोलकाता ऑफिस भेज देते हैं, फिर वहाँ से प्रोसेस होता है, क्योंकि जो डेजिग्नेटेड डिजाइन ऑफिस है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस कोलकाता है, जो कि डिजाइन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करता है। इसमें भी दोनों अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप IIT इंडिया वेबसाइट पे जाके कॉम्प्रिहेंसिव फाइलिंग में बहुत ही इजी तरीके से इंडस्ट्रियल डिजाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो एप्लीकेशन फी होती है दैट इज 1000, जैसे पेटेंट में 1600 था, यहाँ पे ओनली 1000 फॉर इंडिविजुअल स्मॉल एंटिटी स्टार्टअप and ₹4,000 for others which includes companies. एप्लीकेशन फॉर्म 1 में जैसे पेटेंट में फॉर्म 1 था, सेम डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करनी होती है, राइट। क्लास नंबर, नेम ऑफ द आर्टिकल इसमें जरूरी होता है, उसमें आप जैसे फाइल करेंगे तो उसमें किस क्लास में आपका आर्टिकल आता है, किस क्लास में आपका डिजाइन जो इंडस्ट्रियल डिजाइन आता है वो आपको सबमिट करना है, और 2 सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट, एक ये टी पॉट है, इसमें पेटेंट कहाँ पे एनीवन, इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें पेटेंट कहाँ हो सकता है, डिजाइन फीचर क्या है इसमें, यस, जो उसका एस्थेटिक फीचर है कि उसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज हुए हैं, राइट, पैटर्न्स कैसे बने हैं, इन टोटलिटी उसका डिजाइन किस तरीके से है, एस्थेटिक फीचर है, वो इंडस्ट्रियल डिजाइन में रजिस्टर होगा। इसमें पेटेंट कहाँ होता है, पेटेंट अगर आप उसका कैप देखें, राइट, तो कैप को जिस तरीके से पॉट के ऊपर फिक्स किया गया विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड से फिक्स कर रहे हैं या डायरेक्ट फिक्स कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ दिस पॉट, वो भी एक टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ, तो दैट विल कम अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन, सॉरी पेटेंट्स। नेक्स्ट, इस तरीके से इंडस्ट्रियल डिजाइन का सर्टिफिकेट आप लोग को प्रोवाइड करता है, रजिस्टर्ड होता है, तो पेटेंट का भी सर्टिफिकेट मोर और लेस सिमिलर ही रहता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट के आगे रजिस्टर्ड REGD और RD अगर लिखा हुआ है, आप उसका डिजाइन कॉपी न करें अपने बेनिफिट के लिए। अगर आपने, मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट आया और आपको उसका डिजाइन बहुत पसंद आया, आप चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी में उसी डिजाइन के प्रोडक्ट को बना देंगे, और उस प्रोडक्ट में अगर रजिस्टर्ड REGD और RD यूज है तो आप उसको नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल कम अंडर इन्फ्रिंजमेंट, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा, राइट। तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखें कि रजिस्टर्ड प्रोडक्ट को आप कॉपी ना करें। नेक्स्ट, जो टाइमलाइंस है इसका डिजाइन का जैसे बात की है कि इनिशियली फॉर 10 इयर्स है, उसके बाद आप इसको 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इन टोटलिटी डिजाइन आपको सिर्फ 15 इयर्स के लिए मिलता है, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, उसको आपकी इंडस्ट्रियल डिजाइन को कोई भी यूज कर सकता है। So trademark is any word, name, symbol or device or any combination thereof. It identifies and distinguishes the source of the goods or services of one trader from those of others. और इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपको आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप अपना, तो आपको पहली चीज ही क्या करनी है कि आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है। अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करना किए हैं और आपका बिजनेस आइडिया कोई और कॉपी करके उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया है, तो आप उनके अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ट्रेडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडमार्क बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो क्या क्या हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेडमार्क हो सकता है, जिसमें ट्रेडमार्क जैसे टिक है नाइक का, वो हो सकता है नाइकी का। ट्रेड नेम हो सकता है गूगल, राइट। कलेक्टिव मार्क्स हो सकता है, जैसे एडिडास देख रहे हैं आप, एक उसमें नेम भी इन्वॉल्व है और उसमें मार्क्स भी 3 जो स्ट्रिप्स बनी है, राइट। सर्टिफिकेशन मार्क्स जैसे BIS ISI मार्क्स, ये भी ट्रेडमार्क है। स्लोगन्स, टैगलाइंस जो होती है, जैसे नाइक की जो टैगलाइन है जस्ट डू इट, वो भी एक ट्रेडमार्क है। शेप हो सकते हैं, साउंड मार्क्स हो सकते हैं। ब्रिटानिया का साउंड मार्क कोई जानता है? ब्रिटानिया का कोई एडवर्टीजमेंट आप देखते हो तो उसमें साउंड मार्क आता है, तो वो भी एक ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क बहुत सारी चीजें, हमें लगता है कि ट्रेडमार्क कोई साइन ही होना चाहिए या कोई ट्रेड नेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। गुड ट्रेडमार्क का जो क्वालिटी होना चाहिए दैट इज डिस्टिंक्टिव, मतलब कि आपने अगर कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया या कंपनी स्टार्ट की और आप अपना ट्रेडमार्क बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो यूनिक होना चाहिए और वो किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में गए कि आपको जूते खरीदने हैं और आपने ये डिसाइड करके गए कि आपको रिबॉक के खरीदने हैं, मार्केट में गए आपको मिला रिबॉक, राइट, या एडिडास की जगह आपको मार्केट में मिला एडिडास,
वो क्या है, वो डिसेप्टिवली सिमिलर है, राइट। तो आपके जो भी आप ट्रेडमार्क अपना कंपनी या अपना स्टार्टअप बना रहे हैं उसमें ट्रेडमार्क आपका जो रहेगा वो डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होना चाहिए, राइट, किसी भी ओरिजिनल एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से। ये इसको आपने मार्केट में देखा ही होगा, रेलवे स्टेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें ओरिजिनल कौन सा है? थर्ड वन। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क्स कैसे होते हैं। इसमें क्या हुआ है कि जो ओरिजिनल ट्रेडमार्क है उसका जो रेपुटेशन है उसको कॉपी करके बाकी लोग फायदा उठा रहे हैं, राइट। तो इनके अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट का केस होगा, लीगल एक्शन ऑलरेडी इनके अगेंस्ट प्रोसेस हुआ होगा। तो दिस इज द एग्जांपल कि एक ही प्रोडक्ट को का रेपुटेशन किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनके अगेंस्ट लीगल जो इंफ्रिंजमेंट का केस होगा। नेक्स्ट, स्टारबक्स सभी लोग जानते हैं। स्टारबक्स इज फेमस कॉफी आउटलेट, राइट। नॉर्थ इंडिया में एक इंडिविजुअल ने स्टारबक्स की जगह सरदार बक्स कॉफी आउटलेट स्टार्ट किया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो उसका जो लोगो है उसमें 2 सर्कल्स है, उसमें जो लिखा हुआ है वो भी लगभग सेम है, अंदर एक इमेज यूज हो रही है, दोनों में इमेज यूज हो रही है, राइट। तो ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने ये सरदार बक्स आउटलेट जो है इनको बोला कि आपको अपना जो लोगो चेंज करना होगा, आपको अपना कॉफी आउटलेट से जो भी प्रॉफिट हुआ है वो स्टारबक्स को प्रोवाइड करना होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी आप ट्रेडमार्क अपना बना रहे हैं वो डिसेप्टिवली सिमिलर किसी से भी ना हो। ऐसा अगर होगा तो आपका बिजनेस एक तो पूरा बंद हो सकता है, आपके केस फाइल होगा और आपने जितना भी मेहनत किया वो सब बेकार हो जाएगा। तो अपना जो भी ट्रेडमार्क आप बनाएं उसको यूनिक बनाएं, किसी से मिलता जुलता ना बनाएं कभी। नेक्स्ट, जैसे ये डोमेन नेम है याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा। तो आकाश अरोड़ा एक इंडिविजुअल है, इंडियन इंडिविजुअल। इन्होंने क्या किया कि याहू का डोमेन नेम कॉपी करके उसको इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे। याहू इसको ऑब्जर्व कर रहा था काफी समय से। उसके बाद इन्होंने इनके अगेंस्ट केस किया और जो भी उनका आकाश अरोड़ा का बिजनेस था उनको बंद करना पड़ा और जो भी उन्होंने प्रॉफिट उससे कमाया होगा सभी याहू को देना पड़ा, राइट। तो नेक्स्ट, बिस्लेरी में जो माजा जो ब्रांड नेम है वो बिस्लेरी का है, राइट। तो बिस्लेरी ने कोको कोला को माजा के राइट्स दिए। जब भी आप माजा देखेंगे तो उसमें कोको कोला का जो ओरिजिनल कंपनी देखेंगे वो कोको कोला का देखेंगे। अब कोको कोला ने उसका यूज करके जो राइट्स मिल गए हैं उन्हें, वो तो इंडिया के राइट्स दिए थे, उसका यूज करके उन्होंने अपना जो ब्रांड है वो टर्की में भी लॉन्च कर दिया। बिस्लेरी ने कोको कोला के ऊपर केस किया कि हमने आपको सिर्फ इंडिया में राइट्स दिए थे, बट कोको कोला ने ये बोला कि जो एग्रीमेंट था उसमें कहीं भी ऐसा कंट्री स्पेसिफिक आपने नहीं लिखा था। तो ये एग्जांपल इसीलिए कि जब भी आप अपना ब्रांड नेम लॉन्च कर रहे हैं, आपका ट्रेडमार्क लॉन्च कर रहे हैं और आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर गया और आप किसी को राइट असाइन कर रहे हैं, तो उस समय पे ये ध्यान दीजिए कि आप उस एग्रीमेंट में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने कोको कोला ने उस एग्रीमेंट को यूज करके बाकी कंट्रीज में भी माजा ब्रांड नेम के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। हाँ, चेंज होगा, यस रिन्यू होगा, बट मैम इनिशियल मॉनेटरी लॉस तो हो गया उनको जो फाइल हुआ वहां पर, या बाकी में तो चेंज होगा, या यस। हाउ टू इंडिकेट योर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशन पेंडिंग। अगर हम टीएम आप कहीं पे भी देखते हैं किसी भी ट्रेडमार्क के आगे अगर टीएम छोटे से में लिखा हुआ है, इट मींस कि वो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है लेकिन उन्होंने फाइल कर दिया है, राइट। तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। अगर आर है सर्कल के अंदर मींस इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। तो इसका ध्यान रखिए कि जब भी किसी ब्रांड नेम के आगे टीएम और आर लिखा हुआ है मतलब उसका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेस हुआ है या तो रजिस्टर हो चुका है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसमें ट्रेडमार्क जो इनिशियली मिलता है वो 10 इयर्स के लिए मिलता है, उसको आप इंडेफिनेटली रिन्यू कर सकते हैं। जैसे पेटेंट इज ओनली फॉर 20 इयर्स, डिजाइन फॉर 15 इयर्स। ट्रेडमार्क जो मिलता है वो इनिशियली 10 इयर्स के लिए मिलता है, उसके बाद आप उसको इंडेफिनेटली रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपीराइट इज अगेन बंडल ऑफ राइट्स। देंगे कि ये जो मटेरियल है ये उसका ओरिजिनल क्रिएटर आप हो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रूफ करना टफ होगा। अगर आप प्रूफ कर पा रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे तो दैट विल बी इजी। थ्री थिंग्स
यस यस इसमें जो कॉपीराइट का क्राइटेरिया फॉर द वर्क टू बी कॉपीराइटेड में थ्री थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज मिनिमम क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, एंड देन कम्स द फिक्सेशन। फिक्सेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग पूछते हैं सर माइंड में एक आइडिया है, राइट, वो किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर रजिस्टर होगा? एनीवन, आपके माइंड में अगर कुछ चीज है वो किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रजिस्टर होगा? आपके माइंड में एक आपने म्यूजिक बनाया या एक बहुत अच्छा गाना कंपोज किया है, वो किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रजिस्टर होगा? एनीवन? यस, क्रिएटिविटी मतलब वो कॉपीराइट है, क्या है, पेटेंट है, वो कॉपीराइट में आ सकता है, लेकिन वो अभी कहाँ है? वो माइंड में है, वो किसी भी फिजिकल फॉर्म में कहीं नहीं आया है, राइट। तो फिक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक उसका फिक्सेशन नहीं होगा, वो किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं अवेलेबल है, कहीं स्टोर नहीं है, तो वो कॉपीराइट नहीं होगा, राइट। फिक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉपीराइट। आपको उसको किसी ना किसी फिजिकल फॉर्म में लेके आना होगा। आइडियाज का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज सच नहीं होता। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट में क्या क्या हो सकता है? लिटरेरी वर्क हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, ग्रामेटिक वर्क हो सकता है, म्यूजिकल वर्क हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग वर्क हो सकता है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हो सकता है, राइट। लिटरेरी वर्क में आपका बुक्स है या नॉवेल लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, इवन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इंडिया में लिटरेरी वर्क के अंदर रजिस्टर होता है। आर्टिस्टिक वर्क अगर कोई पेंटिंग है, ड्रामेटिक वर्क थिएटर आप कर रहे हैं, म्यूजिक वर्क आप कोई म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, और वही म्यूजिक अगर किसी मूवी में यूज हो रहा है तो साउंड रिकॉर्डिंग वर्क, और जो फिल्म्स है, ये सारी चीजें कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर होती है। इसमें ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनर कौन है। किसी ने लिरिक्स लिखा, वो उनके जो कॉपीराइट है वो उनका हो गया, उसके बाद वो म्यूजिक बना, उसका म्यूजिक कंपोज हुआ, फिर फिल्म में यूज हुआ, और फिर फिल्म पर पब्लिश हुई, तो अलग अलग समय पे ओनरशिप चेंज हो रही है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ओनर उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन है, वेदर राइट्स ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए हैं। राइट ऑफ ऑथर्स ऑफ कॉपीराइट वर्क। कॉपीराइट में इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, मोरल राइट्स होते हैं, जैसे कि पहले बोला बंडल ऑफ राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स ट्रांसफरेबल राइट्स हैं, may be assigned to other owners for a sum of money or royalties depending on the proposed usage of the work। और मोरल राइट्स होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं, वो ओरिजिनल ऑथर के साथ ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बुक लिखी और आपने किसी पब्लिशर को दी कि आप इसे पब्लिश कर दीजिए, तो आपने जो इकोनॉमिक राइट्स है वो ट्रांसफर हो गए कि आपने अपना कंटेंट किसी पब्लिशर को दिया और वो पब्लिश कर रहा है। अगर वो पब्लिशर उसमें अपने हिसाब से 2 पेज ऐड कर दे रहा है तो वो नहीं कर सकता है आपकी परमिशन के बिना, क्योंकि उसके मोरल राइट्स आपके पास है। जो उसका कंटेंट है, उसका जो एसेंस है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। आप अगर उसको परमिट कर रहे हैं, कुछ ऐड करना, डिलीट करना आप कर सकते हैं। अगर आप परमिट नहीं किए हैं तो आप वो अपने एंड से कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, साउथ इंडिया में अगर कोई मूवी बनी, राइट, और वही मूवी पे जो भी राइट्स थे उन्होंने जो हिंदी मूवी के प्रोड्यूसर है उनको ट्रांसफर किए, और हिंदी मूवी के प्रोड्यूसर ने उसमें अपने हिसाब से कुछ उसकी थीम चेंज कर दी, तो वो नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उनसे, राइट, क्योंकि मोरल राइट्स हमेशा उन्हीं के पास होंगे। नेक्स्ट, एक केस हुआ था डेविड स्लेटर वर्सेस मंकी। डेविड स्लेटर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, राइट। तो इंडोनेशिया में जो रेन फॉरेस्ट में ये अपना कैमरा भूल गए, और इस कैमरे को मंकी ने पिक किया और सेल्फी ले ली। अब वो सेल्फी तो ले ली, उसके बाद डेविड स्लेटर को कैमरा वापस मिल गया, और उन्होंने ये फोटो देखकर सभी जगह उसको पब्लिश कर दिया, उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, राइट। तो इस केस में ओनर कौन हुआ? ये जो मटेरियल हुआ, कॉपीराइट इसका किसके पास होगा? हु इज द ओनर ऑफ दिस फोटोग्राफ? यस, डेविड स्लेटर की। उनका तो फोटोग्राफ, उनका तो सिर्फ कैमरा है, उन्होंने तो खींची नहीं ना उस फोटो को। और मंकी को राइट्स मिल नहीं सकते क्योंकि आईपीआर जो है वो किसी भी नॉन ह्यूमन को नहीं प्रोवाइड होते। तो ओनर कौन हुआ? जैसे आप फोटो खींच रहे हैं किसी के अपने कैमरे से, तो उसका जो मटेरियल, कॉपीराइट मटेरियल क्रिएट हुआ, उसका ओनर कौन हुआ? जो आप जो खींच रहे हैं वो, या जो फोटो खिंचवा रहे हैं वो, कौन उसका ओनर हुआ? या जो खींच रहा है वो, राइट। इसमें यहाँ पे किसने खींचा है? मंकी, राइट। तो मंकी को क्योंकि राइट्स नहीं मिलते हैं, नॉन ह्यूमन को, जो ह्यूमन नहीं है उनके लिए आईपीआर राइट्स नहीं होते हैं, तो ये आउट ऑफ कोर्ट को सेटलमेंट हुआ था इस केस में। ये एग्जांपल इसीलिए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ओनर कौन है। आप लोग जो YouTube पे अपने चैनल्स बनाते हैं और उसमें किसी का भी म्यूजिक कॉपी करते हैं, म्यूजिक इंक्लूड करते हैं विदाउट गिविंग क्रेडिट्स, आप ये सारा चीज क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, आपको जेल हो सकती है सारी चीजों में, राइट। कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि किसी और का वर्क है, तो आप उसको क्रेडिट दीजिए, परमिशन लीजिए। अगर आप परमिशन नहीं लेंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक होगा या कॉपीराइट क्लेम होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा क्रेडिट जहाँ पे ड्यू है वहाँ पे दीजिए, जिनका रिसर्च वर्क है। मैम वो सेल्फी से वो लग रहा है कि फ्रंट कैमरा आपको किया है। टर्म ऑफ प्रोटेक्शन जैसे कि पेटेंट 20 इयर्स के लिए होता है, उसी तरीके से कॉपीराइट पब्लिश लिटरेरी ड्रामेटिक आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वर्क की बात करें सो लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स, मतलब लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर 60 इयर्स के लिए राइट्स कॉपीराइट का जो होंगे वो आपके पास होंगे। अगर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है और साउंड रिकॉर्डिंग है तो 60 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन होगा। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है तो 25 इयर्स फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग द ईयर ऑफ ब्रॉडकास्ट। जैसे मान लीजिए हॉटस्टार पे आईपीएल के राइट्स कब तक मिलेंगे या वर्ल्ड कप के राइट्स कब तक, सो दैट इज 25 इयर्स। परफॉर्मेंस राइट, अगर कोई परफॉर्मेंस हो रहा है उसका राइट 20 इयर्स फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच द परफॉर्मेंस इज। जो फी होती है कॉपीराइट की बहुत कम होती है। लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क जो है, म्यूजिकल वर्क वो 500 रुपीस बस होती है। आर्टिस्टिक वर्क टू बी यूज्ड और बीइंग यूज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अगर है तो 2000 रुपीस है। साउंड रिकॉर्डिंग की बात करें तो 2000 रुपीस, और फिल्म्स की बात करते हैं तो दैट इज 5000 रुपीस। देन कम्स जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। Geographical indication is an indication that identifies a product that have a specific geographical origin and possesses quality or a reputation that are due to that particular origin. अगर मैं मुंबई की बात करूं, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपको लगता है जीआई टैग जो आपको लगता है मुंबई में ही मिलता है? ओके, और कुछ नहीं, अभी शायद नहीं मिलता। और कोई मुंबई के ऐसे प्रोडक्ट्स, नवी मुंबई के ऐसा कोई प्रोडक्ट जो नवी मुंबई में मिलता है? तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसकी कुछ जो विशेषता है वो जगह पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी, राइट? दार्जिलिंग टी में जो भी क्वालिटी होगी, अगर उसका प्रोडक्शन या उसकी खेती दार्जिलिंग में होगी तभी होगा, राइट? उसी तरीके से नीलगिरी चाय या कोल्हापुरी चप्पल नागपुर ऑरेंज, चित्तूर राइस, रसगुल्ला उड़ीसा में जो रजिस्टर हुआ है, तो ये सारे प्रोडक्ट जो है वो जीआई के अंदर रजिस्टर होते हैं। ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। गोवा की बात करें तो खाजे, राइट? चित्तूर राइस बालाघाट का, दार्जिलिंग टी, मकराना मार्बल जो ताजमहल में यूज हुआ है वो जीआई प्रोडक्ट है। रतलाम की सेब, कांचीपुरम का सिल्क, बाग प्रिंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग जो है वो जीआई में रजिस्टर हुआ है। नासिक में क्या फेमस है? नासिक ग्रेप्स, राइट? तो वहाँ का जो वाइन यार्ड है, वाइन वो जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी जीआई टैग। तो वैलिडिटी अगर हम समराइज करते हैं तो पेटेंट की वैलिडिटी होती है 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। डिजाइन की बात करते हैं तो 10 इयर्स प्लस 5 इयर्स एक्सटेंड हो सकता है। ट्रेडमार्क इंडेफिनिटली, उसको आपको एवरी 10 ईयर रिन्यू कराना होता है। फॉर एग्जांपल 1930 में मान लीजिए पेप्सी को एक ट्रेडमार्क मिला है, वो पेप्सी का ट्रेडमार्क अभी भी है, क्योंकि वो रिन्यू कर रहे हैं एवरी 10 इयर्स। जीआई भी ट्रेडमार्क ही जैसा होता है, उसको भी आपको एवरी 10 इयर्स रिन्यू करवाना होता है। कॉपीराइट में अलग अलग वैलिडिटी होती है, डिपेंड्स। अगर मैं पब्लिश लिटरेरी ड्रामेटिक आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वर्क की बात करूं तो लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स। और जीआई को कौन अप्लाई कर सकता है? फॉर एग्जांपल कोल्हापुरी चप्पल कोल्हापुर में बन रही है तो वहां पे कोई एक इंडिविजुअल तो कोल्हापुरी चप्पल नहीं बना रहा है, तो उस केस में जीआई टैग के लिए कौन अप्लाई करेगा? तो इन दैट केस आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है और एज अ कम्युन आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एज अ एसोसिएशन आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो जी बाकी सब में इंडिविजुअल रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन जीआई के केस में आपको एज अ कम्युनिटी रजिस्टर करना पड़ेगा। यस मैम, इन्फ्रिंजमेंट जीआई के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि कोल्हापुरी चप्पल कोई ऐसा यहाँ पे मुंबई में कि यहाँ पे वो कोल्हापुरी चप्पल बना रहा है, राइट? और वहां से जो कोल्हापुरी चप्पल आ रहा है उसमें जीआई टैग आ रहा है, तो वो एक क्लेम कर सकते हैं, उसका इंप्लीमेंट ये कर सकते हैं कि ये जीआई प्रोडक्ट हमारा है। आप सेम नाम से ना बेचिए, आप उसको गार्डन की चप्पल करके बेच सकते हैं, आप कोल्हापुरी चप्पल नाम से नहीं बेच सकते। क्योंकि एडवांटेज ये है कि मैम इसका एक्सपोर्ट और ओरिजिनलिटी वो पता चलेगी ना कि आप कोल्हापुरी चप्पल देख रहे हो तो जीआई टैग लिखा हुआ है, तो आप ये एश्योर हो जाएंगे कि ओरिजिनल कोल्हापुर से आया है। दैट एश्योरेंस इज देयर। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बासमती राइस किसी और कंट्री में, उस पे जीआई टैग लिखा हुआ है कि
GI टैग, मतलब ये एश्योरेंस है कि ओरिजिनल उसी जगह पे से आया है, तो वो इम्पोर्टेंस उसका है GI टैग, उसी प्लेस पे मैन्युफैक्चरिंग होना है, तभी वो GI उसको होता है। नेक्स्ट, ऑल IP राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। सपोज कि लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल पेटेंट क्या होता है, इंटरनेशनल पेटेंट जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपने इंडिया में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है तो आपको सारे राइट्स इंडिया में ही मिलेंगे। आप यूएस में चाहते हैं तो यू नीड टू फाइल योर सेपरेट एप्लीकेशन टू यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। ऐसा इसीलिए क्योंकि अलग-अलग कंट्रीज के IP लॉज अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में सॉफ्टवेयर पेटेंट की कैटेगरी में आता है, इंडिया में कॉपीराइट की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए ऑल IP राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर, राइट। तो किसी भी IPR जब क्रिएट हुआ या कोई भी इनोवेशन आइडिया या कोई भी कॉपीराइट मटेरियल क्रिएट हुआ है, तो पहली चीज आपको ये चीज देखना है कि उसको प्रोटेक्ट करना है। पब्लिकेशन हो गया अगर तो उसकी नॉवेल्टी खत्म हो जाएगी। एंड ऑल राइट्स आर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें ऑटोमेटिकली नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप किसी ने इन्फ्रिंज कर दिया तो उसके बाद आपको इसके अगेंस्ट केस फाइल करना होगा, तभी उसके अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट का जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज IPR में क्या क्या हो सकती है? अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन हो सकता है, जो कि क्लास 1 टू गेस्टेड लेवल 10 की पोस्ट है, इनिशियल पोस्ट जो IPR फील्ड में गवर्नमेंट जॉब में है। एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क एंड GI आप हो सकते हैं, एग्जामिनर ऑफ कॉपीराइट्स आप हो सकते हैं। अगर बाकी बात करें तो पेटेंट एजेंट आप हो सकते हैं, ट्रेडमार्क एजेंट हो सकते हैं, आप पेटेंट फैसिलिटेशन और पेटेंट लिटिगेशन सेंटर्स में काम कर सकते हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है आज के समय पे IPR में, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। हम लोग का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है RGN IPM नागपुर, यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग चाहिए आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और IPR रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस प्लीज, एनीवन? Questions? Please. Copyright. ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में? मतलब ट्रांसलेशन नहीं, वो मटेरियल तो आप उसमें कर सकते हैं कि मेरा ओरिजिनल है और इसको नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। मैम किसी भी IPR में ये देखा जाता है कि ओरिजिनलिटी कितना है, प्रिसिशन कितना है, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी क्या यूज की है, राइट। और उसमें क्या क्रिएटिविटी है मैम? आज के डेट में आप वो सेम कंटेंट को उठाकर आप गूगल ट्रांसलेट में यूज करेंगे, वो सेम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देंगे। उसमें अगर कुछ नया इनपुट किया है उन्होंने, कुछ चेंज किया है, वो फिर दूसरा कॉपीराइट हुआ, लेकिन फिर भी क्रेडिट वो जाएगा कि ओरिजिनल ये था और साथ में हमने इसमें ये चेंजेस किए। तो वो दो कॉपीराइट मटेरियल क्रिएट हुआ वहाँ पे कि ओरिजिनल था, साथ में उसके साथ में हमने नहीं इंफ्रिंजमेंट नहीं, हम उसको क्रेडिट दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो रीमेक हो रहा है गाना, वो तो ओरिजिनल गाना तो कॉपीराइटेड होगा, उनसे वो परमिशन लेंगे, राइट्स ट्रांसफर होंगे कि हम इसको रीमेक कर रहे हैं, या तो उसका जो टर्म है जो मैंने बोला 60 ईयर, वो टर्म खत्म हो गया तो फिर आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज है या बुक्स आल्सो, उसमें मिनिमम जो 3 क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल हो रहे हैं तो भी वो आप कॉपीराइट आप कर सकते हैं। उसमें क्रिएटिविटी हो, ट्रांसलेशन में क्रिएटिविटी क्या है, इजीली हो रहा है। हाँ, कंटेक्स्ट अगर चेंज कर रहा है तो भी वो बुक में फर्स्ट पेज पे क्रेडिट देगा कि ओरिजिनल कंटेंट ये था, उसने ये चेंज किया है। तो जो नया वर्क क्रिएट हुआ है वो अगेन सेपरेट कॉपीराइट है। इसके तो बहुत सारे, बहुत वास्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट तो मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। तो आप अपना आपकी बुक, आपने एक बुक लिखी, आपने उसको कॉपीराइट नहीं किया, आप उसको इंप्लीमेंट कर किसी अगेंस्ट केस नहीं करना चाहते, आपने किसी पब्लिशर को दी बुक, उसने पब्लिश कर दी, किसी और पब्लिशर ने सेम बुक उठा के पब्लिश करना स्टार्ट कर दी, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ मैम उस केस में? हाँ, तो जो भी IPR है मैम उसमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो होगा ही ना कहीं भी। अगर आप पेटेंट कर रहे हैं, पेटेंट करके अगर आप खुद को यूज कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं। इंडस्ट्रियल डिजाइन में आप खुद की यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉफिट नहीं। पेटेंट में एक फॉर्म 27 होता है कि आपका पेटेंट वर्क कर रहा है नहीं, वो भी आपको हर साल सबमिट करना होता है कि वेदर इट इज जनरेटिंग सम इनकम ऑफ नॉट। इफ इट नॉट तो वो फिर चीज हो सकता है।
और मतलब कुछ ना कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस उसने क्रिएट करना चाहिए जो भी आपका आइडिया है, ताकि आपका जो रिसर्च है, आपका जो भी आपने मेहनत की है वो बाकी लोगों तक पहुंचे। दैट्स द होल पर्पस ऑफ आईपीआर, राइट? तो प्रोवाइड कर रहे हो उसका पर्पस ये है कि लोगों तक पहुंचे, तो तभी पॉसिबल है ताकि आपका भी कुछ बेनिफिट हो, लोगों का भी बेनिफिट हो। Any other question? Please, anyone? Yes. This type of IP protects the painting painted by artist. Yes? आवाज नहीं आ रही। Painting painted by artist. डिजाइन वाले कितने हाथ ऊपर करो। ओके, यहाँ पे वर्क कौन सा यूज हो रहा है? आर्टिस्टिक वर्क, है ना? तो पेंटिंग एक आर्टिस्टिक वर्क है, वो कॉपीराइट की कैटेगरी में। नेक्स्ट, व्हाट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएटेड बाय फैशन डिजाइनर? फैशन डिजाइनर क्या क्रिएट करते हैं? डिजाइन, कॉपीराइट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक फैशन डिजाइनर है, आपने एक टी शर्ट बनाया, वो डिजाइन में आ गया, वो डिजाइन वो क्या आपने डायरेक्ट उसको डिजाइन टी शर्ट पे कर दिया? आपने कहीं उसको पेन पेपर पे यूज किया हो, तो पेन पेपर पे या किसी सॉफ्टवेयर में यूज किया हो, कॉपीराइट हो गया, और जब वो फाइनल प्रोडक्ट बना वो डिजाइन हो गया, राइट? अगर वो टी शर्ट बनाने का कोई टेक्निकल प्रोसेस है, वो पेटेंट भी हो जाएगा, तो मल्टीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व। नेक्स्ट, What protects the advanced disc brake for bike developed by the inventor? यहाँ पे disc brake की बात हो रही, brake of a bike किसमें आएगा? ब्रेक क्या करता है? एक टेक्निकल फीचर है ना, गाड़ी को रोक रहा है, एक टेक्निकल फीचर है, तो इसका मतलब पेटेंट। Which of this is a geographical indication? What does a trademark protect? Next. How long can a protect? After that, वो public domain में आता है. Next. If you write an original story, what type of intellectual property gives you the right to decide who can make and sell copies of your work? Original story की बात हुई, literary work, right? Copyright. Next. Imagine a cricketer sets up his own company to sell his own range of clothes. What type of intellectual property can he use so that the clothes are made by his company? क्रिकेटर जो है वो अपनी खुद की कंपनी सेटअप कर रहा है, कंपनी सेटअप कर रहा है, और वो जो बेच रहा है वो अपने रेंज में बेच रहा है, क्या होगा? ट्रेडमार्क अपने नाम से वो चल रहा है ना, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो भी प्रोडक्ट आ रहा है किस नाम से आ रहा है? CR7, राइट? जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोग के भी प्रोडक्ट्स है, वो अपना ट्रेडमार्क को if a company develops a new technology that improves its main product, what type of intellectual property can they use to stop others from copying it? इस तो पहली लाइन में पढ़ी है न्यू टेक्नोलॉजी, पेटेंट, राइट? टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, मतलब वो पेटेंट के अंदर रजिस्टर होता है। Yeah, thank you for your time and patience. अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप ईमेल कर सकते हैं, आपके पास ईमेल आईडी है, आप ईमेल करके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं थैंक यू सो मच। As we conclude this enlightening seminar, I extend our deepest gratitude to Mr. Mahendra Dongre for sharing his vast knowledge and experience with us. Thank you, sir, for your time and wisdom. Your contributions to intellectual property rights, innovation and technology have been truly inspiring. We deeply appreciate the valuable insights you have provided. I would also like to thank our respected principal, Dr. Manjusha Deshmukh ma'am, deans, HODs and all faculty members for their presence today. Let us carry forward these learnings and apply them in our respective fields to foster creativity and drive progress. Thank you all for being here. Have a wonderful day ahead.
अभी कर क्राउड दिखाने